Let's get into the word. और आइए हम वचन में जाएं Let's turn our Bibles to the book of Genesis chapter 1, please. और आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को जो है उत्पत्ति की किताब में हम ले जाएं और उसके पहले अध्याय उत्पत्ति 1 में Genesis 1, and let's read from verses 1 and 2 onwards. उत्पत्ति पहला अध्याय 1 से हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. और यहाँ लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Verse 2 says, the earth was without form and void. वचन 2 कहता है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। Now, please understand this. कृपया इस बात को समझे। I don't want to go into deep into this verse, but I just want to say something very important over here. मैं इस वचन की गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। You know, there's something that happened over here. यहाँ पर कुछ तो है जो हुआ। The earth was suddenly having no form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering upon the face of the waters. और परमेश्वर का आत्मा जो है जल के ऊपर मंडराता था। This is the first manifestation of God. यहाँ पर ये पहला जो है परमेश्वर का प्रकटीकरण है। Listen very carefully. और बहुत सावधानी से सुने। The earth was having no form. It was as if it was destroyed or something. और पृथ्वी का कोई रूप नहीं था, मानो उसे पूरी तरह से नष्ट किया गया था। And the Spirit of God was moving upon the face of the waters. और परमेश्वर का आत्मा जो है जल के ऊपर मंडराता था। Today, आज we are praying for the Spirit of God to move upon our lives. और आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवनों पर परमेश्वर का आत्मा मंडराए। And this is a picture of restoration. और ये तस्वीर है पुनर्स्थापना की। I do not know about your marriage. मुझे नहीं मालूम आपकी शादीशुदा जीवन के I do बारे not में, know about your business. आपके कारोबार के बारे में। But if there is one person who can move upon your situation, it is the Holy Spirit. लेकिन इन दिनों में आपके हालातों पर अगर एक व्यक्ति कोई मंडरा सकता है तो वो है पवित्र आत्मा। Let me rephrase that. He is the Holy Spirit. और मैं इसे कहना चाहूंगा कि वो पवित्र आत्मा है। No situation is beyond the Holy Spirit. और कोई हालात या परिस्थिति पवित्र आत्मा के परे नहीं है। Listen carefully. It says और बहुत सावधानी से सुने। without form, empty, dark. See, all those adjectives are over there. And it says the Holy Spirit, He was moving. Everyone say He was moving. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की दशा क्या थी। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान था, अंधेरा था और बहुत सारी जो है हम परिस्थिति को देखते जिस पर पवित्र आत्मा मंडराता था। You know, there was a song we used to sing earlier in the church. It was Atma Mandrata. Anybody knows the song? और Oh yes. हम बहुत पहले एक गीत गाया करते थे, आत्मा मंडराता था। You know, it's just taken from this verse. और ये जो गाना है वो इसी वचन से लिया गया। And if you read the Hebrew, please listen very carefully. I want to build in my अगर आप sermon over इब्रानी here. भाषा को देखें, The word hovering means brooding. और जो है मंडराने का जो मतलब है कि फड़फड़ाना। You know how a hen sits on the eggs और जिस तरह से एक मादा मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है and she warms those eggs with her body. और वो अपनी शरीर की गर्मी से उन अंडों को जो है गर्माहट पैदा करती है That अंडों is the word brooding in the Hebrew. और इब्रानी भाषा में इसी को जो है फड़फड़ाना जैसे हम बोलते हैं। So today, और आज even as you allow the Holy Spirit to move upon your life, और जैसे आप अपने जीवनों में पवित्र आत्मा को इजाजत देंगे कि वो मंडराए, as you allow the Holy Spirit to move in your home, और जैसे आप अपने घरों में पवित्र आत्मा को मंडराने की इजाजत दोगे, you see life will be birthed in your family. Life और will आप be देखो birthed. आपके परिवार में जीवन जो है उसका निर्माण होगा। Somebody say amen. कोई कहे आमीन। And today, you know, I want to take it a little deeper. Listen और carefully. आज मैं इसे और गहरे स्तर पर ले जाऊंगा। This is the word, we also get the word soaking. Everyone says soaking. और ये वो शब्द है जहां पर हमें एक शब्द मिलता है जिसको हम कहते हैं भिगोना या उसकी उपस्थिति में Now बैठना। today, please, I want you to get these things carefully. और बहुत सावधानी से इस बात को समझे। Now today, I'll pray and many of you will feel the presence of God. You will experience things happening in your life. People will receive the gift of tongues and all that stuff. और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु की उपस्थिति आप सभी के ऊपर आएगी। कई लोगों को पवित्र आत्मा छुएगा, कई लोग जो है अन्य भाषा का वरदान पाएंगे। But there is a deeper experience with the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा अनुभव होता है। Now I want you to get this. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात There को was a man समझें। of God. एक परमेश्वर के जन थे। He understood this thing about soaking. Soaking is the place where you just allow the Holy Spirit to just come upon you, be there, be there, be there, be there. And when you do that,
your very life becomes a miracle. एक स्थान है जिसे हम कहते हैं उसकी उपस्थिति में बैठना, और ये वो स्थान है जहां पर आप उसकी उपस्थिति में बैठते हो, उसके साथ गहरे स्तर पर जाते हो और गहरे स्तर पर जाते हो, और आपका जीवन जो है वो हमेशा के लिए बदल जाता है। You know, people, it's not about, soaking is not about somebody getting a job, somebody getting a life partner, as good as that is. But soaking is where you wait upon His presence and say, Lord, it's not about job, it's not about a breakthrough, it's about you. उसकी उपस्थिति में बैठने का मतलब ये नहीं कि आपको चमत्कार मिलेगा, आपकी नौकरी होगी, नहीं, वो सब होगा. ये सारी चीजें होगी, Yes, but लेकिन it's about Him. ये उसके बारे में है। It's not about your daughter, getting a house. And praise God और for all that. देखिए, ये आपकी आवश्यकता के बारे में नहीं कि आपकी बेटी को घर मिल जाएगा, और किसी को कुछ और मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, साड़ी वगैरह, It's about Him. और ये उसके बारे में है। Many times when I'm preparing for the service, और बहुत से बार जब मैं सभा के लिए तैयारी करता हूँ, many things are there. Oh, this should happen proper, that should happen proper. And because of that, you cannot pray sometimes. और बहुत सारी बातें होती है कि ऐसा होना चाहिए उचित ढंग से, वैसा होना चाहिए उचित ढंग से, और ये सारी विचार जो है जिसके कारण कई बार हम सही ढंग से प्रार्थना नहीं कर पाते। At that time, the Holy Spirit taught me. और ये वो समय है जब पवित्र आत्मा ने He मुझे said, son, can सिखाया, you forget about everything? और पवित्र आत्मा ने कहा, बेटे सारी बातें भूल जा। Sometimes running a ministry, oh goodness, we have to pay those bills and this and that, so many things. At that time, you must learn to just focus on Him. It's not about asking, you're just worshiping, you're just thanking. It's called soaking. Everyone says soaking. और देखिए, कई बार सेवा चलाने के लिए हमें बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, हमें बिलों का भुगतान करना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं जिसका विचार मन में आता है, लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो हम सारी चीजें भूल जाते हैं और हमारा ध्यान सिर्फ उसी की ओर होता है। Can I give you a definition? Today, I don't know, somebody is pulling this out of me. और देखिए, क्या मैं इसकी परिभाषा आपको दूं, मुझे नहीं मालूम, कोई तो है जो ये बातें मेरे अंदर से खींच रहा है। The word soaking, according to me, is getting in the presence of God without any agenda. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी उपस्थिति में बैठने का मतलब है बिना किसी एजेंडे के या बिना किसी मकसद के उद्देश्य के आपको उसकी उपस्थिति में बैठना है। बोले क्यों बैठे हो प्रभु की उपस्थिति में? नौकरी पाने के लिए, छोकरी पाने के लिए, गाड़ी पाने के लिए, साड़ी पाने के लिए? बोले कुछ नहीं ऐसा, सिर्फ उसे। You see, this is the place of soaking. देखिए, ये वो जगह है जिसे हम कहते हैं उसकी उपस्थिति में बैठना। This is where you literally carry the presence of God. ये वो जगह है जहां आप वास्तविक रूप से उसकी उपस्थिति को लेकर चलते हैं। Are you getting this, church? और क्या कलीसिया आप इसे समझ रहे हो? I'm showing you the levels. The first level is where somebody prays and the anointing comes on you. Good. But then there is a place where you carry God. देखिए, यहाँ हम आपको स्तरों के बारे में बताते हैं। एक ऐसा स्तर आता है जहाँ कोई आपके लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, बूम, और आप अभिषेक को पाते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा स्तर आता है जहां आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो। Wherever you go, He goes with you. जहां कहीं आप जाते हैं उसकी उपस्थिति आपके साथ जाती है। Are you listening, church? क्या कलीसिया आप सुन रहे हो? That's why I want to share. Some of you are so hungry for God over here. और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कुछ लोग जो है परमेश्वर के लिए काफी भूखे When you हैं। bless people, और जब आप लोगों को आशीष देते it's हैं, as if like God has blessed them. ये मानो कि आप परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है। I'm serious. और मैं गंभीर बात कर रहा That's हूँ। the place that the church must enter. और ये वो जगह है जहां पर कलीसिया को प्रवेश करना That's the चाहिए। message of Pentecost that God और wanted. यही जो है पेंटिकुस्त का संदेश है जो मैं चाहता हूं कि लोग प्राप्त Everyone say करें। brooding upon the face. और फिर कोई कहे कि उस सतह के ऊपर मंडराना, हिंदी में कहते हैं सेकना। सब जो बोलो सेकना। सेकना। जब कोई चोट लगती है तो कैसे माँ सेकती है ना, ऐसा गरम कपड़े से, वो गरम बैग होता है ना। So that's how it is. That's how it is. और इसी प्रकार से होता है। Let me go further right now. और मैं इससे आगे बढ़ूंगा। Some of you are already hungry for the Holy और आप में Spirit. से कुछ लोग पवित्र आत्मा के लिए पहले ही भूखे हैं। Go to Genesis 41. और आइए हम उत्पत्ति उसके 41 वचन में जाए। And Pharaoh said to his servants, और फिरौन ने जो है अपने दासों से कहा, can we find such a person in whom is the Spirit of God? और फिर यहाँ पर बाइबल कहती है कि क्या हमें ऐसा कोई मनुष्य मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा हो? Can we find such a person as Joseph in whom is the Spirit of God?
क्या हमें यूसुफ के समान दूसरा कोई मनुष्य मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है? Hello, are you listening right now? और क्या Can I आप tell सुन you रहे हो? something? मैं आपसे क्या कुछ The बोल Pharaoh सकता was हूँ? an unbeliever. और फिरौन जो है एक अविश्वासी था, But even he was looking for a person who carried the Holy Spirit. लेकिन वो भी ऐसी व्यक्ति की तलाश में था जो पवित्र आत्मा को लेकर चलता हो। Hallelujah. हालेलुया। He recognized a person who carried the presence of God. उसने पहचान लिया उस व्यक्ति को जो पवित्र आत्मा को लेकर चलता है। When Mary entered Elizabeth's house, Oh. she felt the anointing and she says, "Why has the mother of my Lord come to meet me?" और हम देखते हैं जब मरियम इलिशिबा के घर गई तब उसने अभिषेक को महसूस किया और उसने कहा कि मेरी प्रभु की माता जो है वो क्यों मुझसे मिलने आई। Everyone is waiting for a person to carry the presence of God. और हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है इंतजार कर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने का। Will you be such a person? जब आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हो Today, as you enter your home today, और आज जैसे आप अपने घरों में वापस things which have जाएंगे not happened for years will happen today in Jesus' name. और जो बातें सालों से नहीं होगी Yes. वो आज होगी यीशु के नाम में। You will enter your land and there will be deliverance in Jesus' name. और आप अपने भूमि पर पैर Yes. रखोगे और छुटकारा आएगा। I'm not saying this because I'm saying this because you will carry the presence of the Holy Spirit. और मैं Come on. इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलना है, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। Write this down. You know और what इसे लिख ले। you know what is the New Testament revelation? क्या आपको मालूम है नए नियम का प्रकाशन क्या है? In the Old Testament, पुराने नियम में the Holy Spirit is to come on people. पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता था After the work is done, और काम होने के बाद he would go back. वो वापस चला जाता। Spirit of the Lord परमेश्वर का आत्मा would come, आता था accomplish the work, और कामों को पूरा करता था and go. और चला जाता था It was for a momentary time. और वो कुछ क्षण के लिए होता। But the New Testament revelation is this. लेकिन नए नियम का प्रकाशन ये है The Spirit of God dwells in us. परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर निवास करता है। Just in one sentence, I will tell you the whole New Testament revelation. और मैं आपको पूरा जो है नए नियम का प्रकाशन एक वाक्य में बता सकता हूँ। Why did Jesus die? Why this happened? Why he rose? And Paul writes, Christ in us, the hope of glory. और यीशु क्यों मारा, क्यों उसे दफनाया गया, क्यों वो मुर्दों में से जी उठा? पौलुस कहता है कि मसीह जो मुझ में है वो महिमा का जो है वो प्रकाशन है। Please understand this. और इस बात को समझे, When the Holy Spirit comes in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है everything about your life will change. आपके जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें बदल जाती है। I'm not talking about your father being a pastor or somebody laying hands on you. You have to understand this revelation. देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके पिताजी पास्टर है और वो कोई किसी के ऊपर कोई हाथ रखता है। ये पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बारे में है। सब जो बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। फिर से बोलिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है That is the New Testament revelation. और ये नए नियम का प्रकाशन। So when you understand this, जब आप इस बात को समझते हैं you will carry the presence of God literally with you. और आप अपने साथ वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Today after praying, today you will feel, you will cry, you will shout and all that stuff, और आज प्रार्थना के बाद आप शायद चिल्लाएंगे, रोएंगे, ये सारी बातें होंगी। But tomorrow when you go to office, लेकिन कल जब आप दफ्तर जाएंगे you will say, "Arey, I don't feel the Holy Spirit." और आप कहेंगे कि अरे मैं पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर रहा हूँ, मेरा बॉस का खाली चिल्लम चिल्ली सुनाई दे रहा है. I don't feel the anointing. और मैं अभिषेक को महसूस नहीं In कर the रहा। train when somebody is squeezing you, और जब आप ट्रेन में जाते हो, रेल में जब लोगों की भीड़ आपको दबाती है and you're smelling all the, come on now. और आप रेलवे में जो है हर प्रकार की बू जो है आपको सूंघना पड़ता है You say, "Holy Spirit, where are you?" और आप कहोगे पवित्र आत्मा तू कहाँ है? At that time, उस समय know this, इस बात को that जाने in you is the Holy आपके Spirit. अंदर पवित्र आत्मा है। Don't you forget that. कभी इस बात को भूले नहीं Put your hand on yourself और अपने आप पर हाथ रखें and say, "The Spirit of God in me और कहे परमेश्वर का आत्मा जो मुझ is में है the hope of glory." और वही महिमा की आशा है। These two things are, first I want you to understand. और ये दो बातें Soaking, समझने की जरूरत है so you don't end up with today's message, anointing mil gaya. Nahin. You have to continue soaking. Everyone says soaking. और इस संदेश के साथ आपको खत्म नहीं करना ये सोच करके अभिषेक मिल गया है, नहीं, आपको उसकी उपस्थिति में बैठना है। That's why I'm teaching you. Second thing, और इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। दूसरी बात, that the New Testament revelation is the Spirit of God
in you. और नए नियम का प्रकाशन ये है पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है. Hallelujah. हालेलुया. So you'll be going through troubles, this thing, this one, that one. Know this, that the Holy Spirit is still in you. और जब आप सताव से जाएंगे, तकलीफ से जाएंगे, सारी प्रकार, हर एक प्रकार की बातों से जाएंगे, तब जाने कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है. Prophet Hezekiah Francis, many years back I heard a tape. और भविष्यवक्ता जो है हेzekiah फ्रांसिस, उनकी एक टेप कई सालों पहले मैंने सुनी थी. Listen to this. इसे सुने. You are big now, today every prophet and this and that. But I learned to these foundational truths. Listen to me. I used to keep on saying, the Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is in me. And one day, listen to this, I'll really tell you. और देखिए, मैं हमेशा ये कहता था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है. One day before going to a service, और एक दिन सभा में जाने के पहले 3 hours I sat down. और 3 घंटे में बैठ गया. I'm telling you, still today, ask my team members, I do that. और आज भी मैं ऐसा करता हूँ. मेरे टीम I मेंबर put से a आप पूछ timer, सकते हैं. ask my staff, always pray with a timer. Don't I pray with a timer? Yes. और They मैं know it. हमेशा जो है वो टाइमर So के I साथ put a प्रार्थना करता timer, हूँ. 3 hours. Spirit of the Lord is upon me. Spirit of the Lord. And I went to a meeting somewhere. I will not tell you. And I stood over there before the sermon. I said, everybody stand up. Now the Spirit of the Lord is in you. Half the people crashed. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ 3 घंटे मैं प्रार्थना में था. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है. और मैं एक सभा में गया और वहां पर मैंने सभी से कहा कि खड़े हो जाओ और कहो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है. और धड़ाक से सभी लोग नीचे गिर गए. Many people, 3 minutes भी नहीं बोला. Spirit of the Lord. You're too busy. आज आप बहुत व्यस्त हो. No. आजकल पब्लिक को यहाँ वहाँ भागते रहते हैं. मिनिस्ट्री. ये इसको मीटिंग, ईटिंग, सिटिंग, यही चलता है. Soaking will take time. और देखिए उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए वक्त लगता है. Even before coming for this service, इस सभा में आने के पहले I had to sit in the presence मुझे of God. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना Come पड़ा. on, Pastor, आपको तो कुछ काम नहीं. Really? Come. हर एक आदमी सोचता है कि मेरी तकलीफ बाजू से बैठा उससे ज्यादा है. लेकिन जो बाजू में बैठा उससे पूछो कि भाई तेरी तकलीफ कितनी बड़ी है. Don't think that. और कभी ऐसा नहीं सोचे. So when you get this revelation, the Spirit of God is in you. Outside circumstances will say, you feel dry. AC is not there, this is not there, that is happening, this fellow is screaming, that fellow is screaming. But always remember, the Spirit of God is in you. जब आपको ये प्रकाशन मिलता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तो बाहरी जो परिस्थिति या हालात है उसका कोई फर्क आप पर नहीं पड़ेगा. लोग चिल्ला रहे हैं, यहाँ वहाँ शोर मच रहा है, एसी काम नहीं कर रहा है, इसका कोई असर आप पर नहीं होगा जब आप ये प्रकाशन को पाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर रहता है. These 2 things I want you to understand. ये सच्चाई है जो मैं चाहता हूं कि आप समझें. Don't walk by feelings, walk by revelation. भावनाओं के साथ मत चलो, प्रकाशन के साथ चलो. How many understanding this truth? कितने लोग इस सच्चाई को समझ रहे हैं? Especially in the area of the Holy Spirit, area of the anointing, you should not walk by the feelings, you should walk by revelation. और खास करके पवित्र आत्मा Let me के go further. क्षेत्र में अगर हम कहते हैं तो आपको भावनाओं से नहीं चलना है, प्रकाशन के साथ चलना I है. don't know for whom I'm telling. मुझे नहीं मालूम मैं किसके लिए बता To रहा हूं. operate in the gifts, कभी-कभी ऐसा लगेगा कि अरे क्या यार, कुछ ड्राई लग रहा है, कोई कीबोर्ड नहीं बजा रहा है, कुछ नहीं बजा रहा है. At that time, are you getting me what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? When your pastor, your J12 leader tells you, come on, go and pray, you'll feel dry. At that time, no, it is not outside, it is what is inside. और जब आपके पास्टर और आपके J12 लीडर जो है आपसे कहते हैं जाओ प्रार्थना करो, तब आप जो है शायद कुछ महसूस नहीं करेंगे कि आज प्रार्थना करने के लिए हो नहीं रहा है, लेकिन आपको ये प्रकाशन होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है. Come on, everybody. और हर कोई कहे. Okay, now I have given you the basic foundation. Let me go deeper now. अब मैंने आपको जो है बुनियादी बातें बताई है, अब मैं आपको और गहरे स्तर पर ले जाऊंगा. Pastor, that is good. पास्टर ये बात अच्छी है, But today I want the Holy Spirit. लेकिन आज मैं पवित्र आत्मा को पाना चाहता हूँ. How do I receive it? और कैसे Receive मैं Him. पवित्र Sorry. आत्मा को प्राप्त करता हूँ, How do I attract the anointing? और कैसे मैं अभिषेक को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ. The first thing, सबसे पहली बात, there are some things that will attract the Holy Spirit. ऐसी कुछ बात है जो पवित्र आत्मा का ध्यान अपनी ओर And I खींचती want to share with you. है. और मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ. These things will work anywhere at any place. देखिए ये बातें जो है कहीं पर भी किसी भी जगह पर काम करेगी. I have used these truths
everywhere in the world, wherever और I've gone. पूरी दुनिया में जहां कहीं मैं गया वहां पर मैंने इस सच्चाई को जो है इस्तेमाल किया And the Holy Spirit has worked. और पवित्र आत्मा ने काम किया है। I'm telling you, और मैं आपसे कहना people चाहता have made faces. हूं, लोगों ने मुंह बनाए। You know, when I was in America, जब मैं अमेरिका में था I was taken to a church. और मैं एक कलीसिया में बात कर रहा था, Okay, and there, you know, they're all tall, you know, और आपको मालूम है ये सारे अमेरिकी इनकी 6 foot, you know, the इनका black Americans. कद-काठी बहुत ऊंचा होता है, 6 फीट के लोग होते हैं। And we are all like this, you know, at least me. और गाड़ी मैं है ना? सबकी ने मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो इस तरह से दिखता मैं ऐसा, आप लोग सब हैं बराबर, हाँ? So when they look at you, हूँ। सो जब वो आपकी ओर देखते हैं, ये कौन है? उनका रवैया ऐसा होता है, ये कौन But है? when the anointing came, लेकिन जब अभिषेक आया, their tune changes. उनकी आवाजें बदल गई। I'm telling you, today everybody looks at personality, you know. और देखो आज हर कोई व्यक्तित्व को देखता है। I want to tell you. मैं आपसे कहना चाहता So हूँ, don't worry. सो चिंता मत If you're करें। like me, और अगर आप मेरी तरह simple, ordinary person, बहुत ही साधारण सरल से व्यक्ति, then you should do this. तो आपको ये कर आजमाना If चाहिए। you're tall, 6'4", 3, 9, you know all that, और आपको तो ये सब मालूम है मत करो, ऊंचे अपने कद के personality से लोग जाओ. जो 6.3 या 9 के होते हैं, Listen, सुने, the first thing that Sir. will attract the presence of God anytime, write it down. और आप इसे लिख ले कि एक ऐसी बात Write जो it पवित्र down. आत्मा का ध्यान अपनी ओर खींचता है किसी भी समय कहीं पर भी, आप इसे लिख ले। He will come. मैंने कहा वो आएगा, Write it down. आप इसे लिख ले Don't you forget it. और कभी भूले नहीं। The first thing सबसे पहली बात is the blood of Jesus Christ. वह है यीशु मसीह का लहू। Say it everyone, the blood of Jesus. सभी लोग कहे यीशु का लहू। I want you to first give the scripture and I'll tell you how to use it. और मैं पहले वचन दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करते In the हैं। Old Testament, पुराने नियम में in the book of Leviticus, nobody, very few people like to read the book of Leviticus. How many of you agree with me? और हम देखा? देखते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक है, ऐसी पुस्तक है जिसे बहुत सारे लोग पढ़ना जो है नहीं चाहते। बोले क्या है ये सब? See, some of them are laughing also. देखिए कुछ लोग हंस भी रहे, Yes or no? हाँ या नहीं। Some of them don't know also if there is Leviticus. और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि लेवी व्यवस्था है कहाँ। छोड़ो जाने दो. In that there was one ceremony for a leper. और हम देखते हैं कि जो कोढ़ी लोग होते थे उनके लिए एक जो है एक रिवाज होता था, There was a ceremony for a leper. और कोढ़ी लोगों के लिए एक व्यवस्था होती थी। If a leper gets healed, और अगर कोई कोढ़ी है जिसको चंगाई मिल जाती थी, very interesting बहुत दिलचस्पी की बात है, that no leper was healed in the time of the law व्यवस्था दिए जाने के दिनों में कोई कोढ़ी जो है चंगा नहीं हुआ, except Naaman the Syrian, और हम देखते हैं कि केवल नामान जो सीरिया का नामान है उसे छोड़कर, and he was an unbeliever. और वो एक अविश्वासी था। Now there was a ceremony. Please listen very carefully. और बहुत ही सावधानी से सुने। So if a leper would be healed, और अगर कोई जो है कोढ़ी चंगा होता था he had to present himself to the priest तो उसे अपने आप को याजक को दिखाना पड़ता था and tell him, और उसे बताना Check पड़ता me था, now. अब मेरी जो है जांच करके I am बताओ healed. मुझे, मैं चंगा हुआ हूँ। and after that, और उसके बाद after the confirmation, और एक बात पुष्टि हो जाती है उसके there was बाद, a ceremony that had to be carried out. Listen, और एक समारोह या फिर एक अनुष्ठान होता था जिसे करने की जरूरत होती थी। very interesting और बहुत ही दिलचस्पी की that बात है, when Jesus healed that leper, जब यीशु ने कोढ़ियों को चंगाई दी he told him, और उसने उन्हें बताया, go and show yourself to the priest. जाओ और जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। There was a reason और इसके पीछे एक कारण so था, that this ceremony in Leviticus would be done. ताकि ये जो विधि है लेवी व्यवस्था में इसे पूरा किया जाए। Now in this are hidden the keys of the anointing. और इसमें जो है अभिषेक की चाबियां जो है वो छुपी हुई You know, as I was meditating, I'll show you this. और मैं वचन के ऊपर Just मनन कर रहा one था तो verse. ये सारी बातें मिली। Just मैं आपको one verse. बताऊंगा, एक सिर्फ एक वचन, The leper, write this down. और इसे लिख ले, जो कोढ़ी होते The थे, leper signifies the sinner. और हम देखते हैं कि कोढ़ी जो है वो पापियों को दिखाते, It is symbolic of sin. और ये पाप का एक चिन्ह है। Many people ask me why God hated the lepers. It's not about the leper. It was leprosy was symbolic of sin. और हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं कि क्यों परमेश्वर ने कोढ़ियों को चुना, लेकिन हम देखते हैं कि कोढ़ जो है वो पाप का एक चिन्ह है। And when the
leper was healed, it signifies salvation. Everyone says salvation. और जब कोई कोढ़ी अच्छा हो जाता था या उसे Okay, let me चंगाई not go मिलती थी तो ये उद्धार के समान था. सभी लोग बोले उद्धार. So the first thing to receive the anointing of the Holy Spirit is you must have Jesus Christ as your Lord, as your God, and as your Savior. How many of you are और listening right now? सबसे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी कि आप उसे अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु और अपने परमेश्वर के रूप में उसे ग्रहण करें. There was a man in the Bible. बाइबल में एक मनुष्य था. When he saw the miracles that Paul and others did, he said that, give me this thing also. और जब उसने देखा पौलुस के हाथों से चमत्कार हो रहे हैं तो उसने कहा कि हमें भी ये वरदान दे. Give me this power. और हमें ये सामर्थ्य. He was not a believer in Christ. और वो मसीह में विश्वासी नहीं था. He was an unbeliever. और वो एक अविश्वासी था. That is not right. That is not a good foundation. और हम देखते हैं कि ये कोई सही बुनियाद नहीं है. How many are understanding this? और Now कितने लोग let इस us बात go. को Let us समझते go over here right now. और आइए हम यहाँ पर आगे बढ़ें. Leviticus 14 verse 17. और हम देखते हैं लेवी व्यवस्था उसका 14 अध्याय वचन 17. See what it says. और देखो यहाँ पर क्या लिखा है. The oil that is in the hand. और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा. What he should do? He shall put it on the tip of the right ear. Right और ear. Okay. याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर On the thumb of the right hand. I'm और making it उसके short. दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर And on the big toe of the right foot. और दाहिने पांव के अंगूठे पर. Everyone say ear. कान. Everyone say ear. सभी लोग कहे कान, Thumb. अंगूठा और पैर का अंगूठा. This speaks of hearing. This और- speaks about the works of the hands, and this speaks about your walk. और हम देखते हैं कि ये जो कान wait, है wait. ये परमेश्वर के वचन को सुनने को दिखाते हैं. हाथ का अंगूठा आपके कामों को दिखाता है और पैर का अंगूठा चलने को दिखाता है. And says on the blood of the trespass offering. Wait. और फिर यहाँ पर लिखा है कि शुद्ध होने वाले जो है दोष बलि के लहू को ऊपर लगाए. Before the oil could come, और इसके पहले कि तेल आए. see the oil was applied on the ear, on the thumb, and on the foot. Yes or no? और देखिए तेल जो है वो कान पर, हाथ के अंगूठे पर और पैर के अंगूठे पर लगाया जाता था. But before the oil, लेकिन तेल लगाने के पहले the blood was applied. और वो जो है लहू जो है उसे लगाया जाता The है. blood was applied on the ear, on the thumb, and on the foot. और लहू जो है वो कान पर, हाथ के अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर लगाया जाता है. How many understanding this right now? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? Before the oil came, इसके पहले कि तेल आए the blood was applied. लहू जो है लगाया गया. How many understanding this truth right now? कितने लोग इस सच्चाई को समझ रहे हैं? See, this is what the scripture says. और यही वो बात है जो वचन कहता है. See, church, listen to this. कलीसिया इस बात को समझे. Where the blood was, और वहां पर लहू था, the oil came. वहीं पर तेल भी आया. If there was no blood applied, और अगर कोई लहू लगाया नहीं जाता the oil would not have तो come. तेल भी लगाया नहीं जाता. The oil represents the anointing of the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि जो तेल है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाता है. The moment the oil came on the leper, और जिस घड़ी जो है वो तेल जो है वो कोढ़ी ऊपर आया, he was free. उन्हें छुटकारा मिला. I want you to understand this मैं truth. चाहता हूं कि आप इस बात को समझें. If you don't understand this, अगर आप इसे नहीं समझते you'll miss out the anointing. तो आप अभिषेक को खो देंगे. That is why और इसीलिए Jesus had to shed his blood before and then the Holy Spirit came. और इसीलिए यीशु को पहले अपना लहू बहाना पड़ा और तब उसके बाद उसने पवित्र आत्मा को भेजा. I mean, और people say, why if first the Holy Spirit can come, then Jesus? You see, the Holy Spirit was not released till the sacrifice, the blood was shed. और सारी बातें पूरी करने की जरूरत थी. यीशु मसीह, आप कहेंगे कि क्यों नहीं पहले पवित्र आत्मा को भेजा गया, बाद में यीशु को मरना था. लेकिन हम देखते हैं कि जब तक यीशु की मृत्यु नहीं होती पवित्र आत्मा नहीं आता. So now here it is now. अब यहाँ पर ये बात है. Listen very carefully. और बहुत सावधानी से सुने. Anytime you want the anointing to touch you, you must learn to pray in the blood of Jesus. और कभी भी अगर आप चाहते हैं कि अभिषेक आपको छुए तो आपको यीशु के लहू में प्रार्थना करना आना चाहिए. Say, I cover myself with the blood of और Jesus. कहो कि मैं अपने आप को यीशु के लहू से ढक देता हूँ. Say, I cover my spirit, soul, and body with the blood of मैं Jesus. अपने आत्मा प्राण शरीर को यीशु के लहू से ढक देता The हूँ. moment you start doing that, और जिस घड़ी आप ऐसा करना the शुरू Holy करते हैं, Spirit says, I want to honor the blood. I want to honor the blood. I want to पवित्र आत्मा कहेगा कि मैं उस लहू का आदर करूंगा, मैं उस लहू का आदर करूंगा, सम्मान करूंगा.
This is the secret. और यही रहस्य है। Now many people, बहुत सारे when you लोग, talk about the blood, they say, what blood, blood, blood. और जब हम कहते हैं यीशु का लहू तो वो कहते हैं लहू लहू लहू। Let me go to Elijah. और मैं एलिया के पास The जाऊंगा। moment the sacrifice was put on the altar, और जिस घड़ी जो कुर्बानी है वो जो है वेदी पर रखी गई the fire came. और पवित्र आत्मा की आग आई। Same thing Pentecost. और पेंटिकॉस्ट के दिन भी यही हुआ। If you don't pray in the blood, अगर आप उस लहू में प्रार्थना नहीं करते, the Holy Spirit will not come. पवित्र आत्मा नहीं आएगा। How many understanding this? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? Okay, now let me take it more deeper. और बहुत गहरे स्तर पर मैं ले जाऊंगा। Before you pray for the anointing to move anywhere, cover that place in the blood of Jesus. और इसके पहले कि आप कहे कि अभिषेक किसी जगह पर पहुंचे, उस जगह को यीशु के लहू से ढक दो। That place will be sanctified. वो जो जगह है शुद्ध हो जाएगा। If you want to pray for the auditorium, the anointing to move, we cover this auditorium with the blood of Jesus. And then you pray, Holy Spirit, move. He will move. Hallelujah. सो अगर आप चाहते हैं कि सभागृह में अभिषेक आए तो आपको यीशु के लहू से सभागृह को ढक देना है और तब वो अभिषेक आएगा इस How जगह many पर। understanding this right और now? कितने लोग इस बात को समझ If रहे you हैं? don't do this, अगर आप ऐसा नहीं करते you can shout your lungs out, nothing will happen. और आप अपने भले ही फेफड़ों को बाहर लाकर आप चिल्लाओ लेकिन कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा भाई, कितना भी वॉल्यूम ले लो तू, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। See, the Holy Spirit will honor the blood of His Son. पवित्र आत्मा जो है उसके पुत्र के लहू का सम्मान करता है। How many listening right now? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? You want your money to be anointed? और अगर आप चाहते हैं आपका पैसा अभिषिक्त हो I cover my money with the blood of और Jesus. कहो मैं यीशु के लहू से मेरे पैसे को ढक देता हूँ। Anything, कोई भी बात, your marriage. आपका शादीशुदा जीवन, I cover my marriage with the blood. Holy Spirit, come and anoint my marriage. The anointing will come. और मैं अपने शादीशुदा जीवन को यीशु के लहू से ढक देता हूँ। Some of you पवित्र are आत्मा का not getting it, अभिषेक but आएगा। some of you right there are getting it right now. और देखिए कुछ लोग जो वहां पर बैठे हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं। So, what is it that attracts the anointing? Church, it is the blood of Jesus. और ऐसा क्या है जो अभिषेक को अपनी तरफ खींचता है? वो है यीशु मसीह का If you लहू। don't do this, और अगर आप इसे नहीं करते the anointing will not come on you. तो वो अभिषेक आपके ऊपर नहीं आएगा। You know, I can lay hands on you. Now, please understand, इतने सारे लोग हैं, सब पे hand lay करने में time जाएगा. Now, there are ways to receive, but if you want to receive directly from the Holy Spirit, that's the way you do it. और देखिए हर एक पर हाथ रखने में बहुत समय जाता है, लेकिन अगर आप सीधे अभिषेक को पाना चाहते हैं तो आप यीशु के लहू को लगाओ और देखो पवित्र आत्मा आपके ऊपर सीधे उतर आएगा। Now, as you apply the blood also, just don't apply it as a formula, blood of Jesus. You have to believe in that Jesus has died for me, not just like an event. It is for me. It is for my salvation. Then the blood works. और सिर्फ कहने के लिए मत बोलो यीशु का लहू, लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए कि यीशु का वो लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया, मेरे उद्धार के लिए बहाया गया। और फिर जब आप उस लहू को लगाएंगे तो आप उसके नतीजे को देखेंगे। Point number 1. और पहला मुद्दा, What attracts the anointing big time? और अभिषेक को सबसे ज्यादा क्या अपनी ओर आकर्षित करता है? It's the blood of Jesus. वो है यीशु का लहू। Everybody lift your hands and say the blood of और Jesus. सभी लोग अपने हाथों को उठाकर कहे यीशु का Say लहू। loudly the blood of Jesus. और जोर से कहे यीशु का लहू। Hallelujah. हालेलुया। Can I go deeper right now? और क्या मैं और ज्यादा गहरे स्तर पर जाऊं? Before that, please listen. और to me. उसके पहले आप कृपया सुन ले। You know, the blood of Jesus will cleanse you. और यीशु का लहू आपको धोएगा भी। If there is anything in your life अगर आपके जीवन में कुछ भी है that is not right, जो सही नहीं है that blood will cleanse you. तो वो लहू जो है आपको धो देगा। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? Are you listening? You know, पात्र यूज होने से पहले उसे धोया जाता है। You know, कोई भी वेसल को यूज करने से पहले, you know, अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, बेचारा आदमी, सादा आदमी, फिर भी उसको हम धोते हैं। In the same way, God also, before He uses any vessel, He will at least clean it, not from the outside, but He will clean it from the inside. और देखिए Yes. ठीक वैसे ही जैसे उदाहरण हमें दिया गया है, परमेश्वर भी किसी भी बर्तन को इस्तेमाल करने के पहले बाहर से नहीं लेकिन कम से कम अंदर से जरूर साफ करता है। God always starts on the inside. और परमेश्वर हमेशा हमारे भीतर जो है वो देखता है। Everyone say the blood of Jesus. और हर कोई कहे यीशु का लहू। Say it again, the blood of Jesus. फिर से कहे यीशु का लहू। So what attracts the anointing is the blood of Jesus. सो अभिषेक को अपनी ओर क्या खींचता है? वो है यीशु का लहू। Can you feel His presence in this place? क्या आप उसकी उपस्थिति को अनुभव कर रहे इस जगह पर? You'll feel like, ay, kya hai? You know, it's like that. और आप सोच रहे कि ये क्या है? Second thing,
दूसरी बात, What attracts the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति को क्या अपनी ओर खींचता है? Go to Matthew 5 and verse 6. और मत्ती उसके 5 अध्याय वचन 6 में जाए। These are simple things but very, very profound. ये Matthew जो 5 है verse 6. बहुत ही सरल सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण It बात है। says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। Sometime back, और कुछ समय I was पहले preparing for a crusade, for a big outreach. और एक बड़ी सभा के लिए मैं तैयारी कर रहा था। And God gave me this scripture. This was many years परमेश्वर ने ये back. वचन मुझे दिया And the Holy Spirit said, tell the people what attracts my presence towards them is not their clothes, is not their style, but their hunger and thirst for me. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जाकर लोगों को बता कि क्या है जो उनके ध्यान को मेरी ओर आकर्षित करता है। वो उनका कपड़ा नहीं है या जिस तरह से वो उठते बैठते हैं या दिखते हैं, लेकिन ये उनका जो है भूख और उनकी प्यास जो है धार्मिकता के लिए। Many years back, I was in a power conference, power ministry of Uncle D.J.S. Dinakaran. और अंकल डीजीएस दिनाकरन जो है उनकी पावर सेवकाई में मिनिस्ट्री में हम गए थे। I have never been to a retreat. This मैं- is the only conference I have attended, and I've attended another conference with the great man of God, Prophet Shepherd Bushiri. That's it. और मैं जो हूँ कभी कोई ज्यादा जो है As सम्मेलन a में नहीं retreat गया for anointing and all that. और मैं केवल जो है इनके सम्मेलन में गया और दूसरे जो है प्रॉफिट बूशरी जो है उनके सम्मेलन में मैं गया Alright. था। But in that service, लेकिन उस सभा में I was sitting, there were hundreds of people. I was sitting right at the back. और वहां पर सैकड़ों लोग थे लेकिन मैं दाहिनी और पीछे की ओर And in बैठा the था। front, there were top people over there. और आगे की कतार में सबसे जो है उम्दे और बड़े लोग जो है बैठे थे। Uncle D.J.S. Dinakaran was on the pulpit. और अंकल डीजीएस दिनाकरन पुलपिट पर थे And he said something. और उन्होंने कुछ कहा And the Lord is here. You know how he speaks. और no? उन्होंने कहा प्रभु यहाँ है। When I heard that, और जब मैंने ये सुना I went on my knees, मैं अपने घुटनों पर right गया at the back. और पीछे की कतार में I was बैठे हुए crying, God, if you're here, don't forget me. और मैं पुकार उठा। मैंने कहा परमेश्वर अगर तू इस जगह है तो मुझे भूल मत। This was the year 1999. और ये 97, समय sorry. था साल 1997 का। I was on my knees crying, God, please don't leave me. You have to anoint me today. और Otherwise मैंने it's अपने over. घुटनों पर आकर कहा परमेश्वर आप मुझे छोड़कर नहीं जाए, आप जो है आपका अभिषेक मैं पाना चाहता हूँ। सामने बोल लोग नहीं बैठे थे ना, वो लोग कुछ भी नहीं, like, you know, Pastor, they were just so casual. And people are worshiping God, screaming, crying. In front of them, you know, the big fellows, you know, big Americans, Europeans, you know, they were so casual. Oh, hi, you know, people were coming, people are going. And behind, I looked very casual. Very casual. That day, और उस दिन वहां पर क्या हुआ कि जो आगे के लोग बैठे थे वो बड़े जो है बेपरवाह ढंग से जो है वो पेश आ रहे थे। कोई हाथ उठा रहा था, नहीं, शोर कोई शराबा आराम हो से रहा नो था, आँख खोल रहे, इधर उधर देख रहे, इधर ऐसा उधर सब. देख रहे थे। But afterwards, लेकिन उसके when I बाद got up, जब मैं खड़ा हुआ I felt my whole body vibrating with the power of God. और मैं देखने लगा कि मेरा पूरा शरीर परमेश्वर की सामर्थ से हिलने लगा I knew I had received the anointing. और मैं जान गया कि मुझे अभिषेक प्राप्त हुआ है। At that day, I was going in my room. I was in my room. और उस दिन जब मैं अपने कमरे में गया The Holy Spirit reminded me this scripture. पवित्र आत्मा ने ये शब्द जो है ये वचन मुझे याद He दिलाया। said, when you are in my presence, जब तुम मेरी उपस्थिति में थे never be casual. और कभी भी तुम जो है बेपरवाह होकर मत आओ। You know, क्या होता है? हम लोग बड़े बड़े मीटिंग्स में जाते हैं, बड़े बड़े सर्वेंट्स ऑफ गॉड को जानते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं? पवित्र आत्मा हमारा सर्वेंट है। मैं ये मैन ऑफ गॉड को जानता हूँ, मैं वो मैन ऑफ गॉड को जानता हूँ, मैं इधर गया हूँ, मैं उधर गया हूँ, तो इसने मुझ पे प्रोफेसी किया, उसने मुझ पे, तो हम लोग क्या सोचते हैं? पवित्र आत्मा हमारे जेब में है। मैं पास्टर हूँ, मैं बिशप हूँ। हम लोग क्या सोचते हैं? मैं क्रिश्चियन हूँ, शकारा बाबा 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 बाबा। अच्छा, तू बाबा बाबा करता है इसीलिए पवित्र आत्मा तेरे जेब में है? You know, please don't get me wrong. और कृपया करके मुझे गलत नहीं समझे, Don't get me wrong. मुझे गलत नहीं समझे। And there are people और ऐसे लोग भी who हैं say, God, जो कहते हैं I am a परमेश्वर pastor मैं एक पास्टर हूँ for 20 years, 20 सालों से, but I need you more, Lord. लेकिन मुझे Hallelujah. और भी ज्यादा आपकी जरूरत है। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हो? David was a king, और दाऊद राजा था but he said, God, और उसने कहा परमेश्वर मैं कौन हूँ प्रभु? मैं कौन हूँ? अरे डेविड, अगर तू बोलता है कौन है तो मैं कौन हूँ फिर?
Do you understand what I'm saying? और क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? You see, it is not your title. और देखिए ये कोई शीर्षक नहीं है, It is not your position. ये आपका स्थान नहीं है, It is not how much you know. और ये इसके बारे में भी नहीं कि आपको It is कितना पता है how much you hunger and और thirst. कितना ज्यादा आप उसके लिए भूखे और प्यासे हो, How many understanding right now? और कितने लोग इस बात को समझ Just रहे हैं। because you are in church, और क्योंकि आप कलीसिया में हो, just because you are a leader, और क्योंकि आप एक अगुवे हो, just because you have a title, और क्योंकि आपके पास एक शीर्षक है, does not mean you will be filled. और इसका मतलब ये नहीं कि आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। I've got the phone numbers of some of the greatest prophets you want to meet on my phone now. और देखिए ऐसे Please don't सबसे take my phone महान now. भविष्यवक्ता जिनसे आप कभी मुलाकात भी करना चाहेंगे, ऐसे लोगों के नंबर मेरे फोन में है। Yesterday, a great prophet called me up and said, "Hey, this thing happened." You want to meet them? I've got their numbers. But let me tell you one thing. I don't hunger to meet them. I hunger to meet the Lord. और हम देखते हैं कि कल एक भविष्यवक्ता ने हमें फोन करके बताया, देखो यहाँ पर इतने बड़े महान काम हुए। ये Yes. वो भविष्यवक्ता है जिनसे आप हमेशा से मिलना चाहते हैं, और मुझे कभी भी ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिलने की भूख नहीं है, मुझे भूख है पवित्र आत्मा की। When I was, listen, don't get me wrong. और Don't get मुझे me जो wrong. है आप I गलत love नहीं to समझे, receive the anointing. और You know, मुझे I was in उनका Dubai. अभिषेक देखना पसंद I है। was in Dubai. मैं दुबई में था। There was a great man of God परमेश्वर के महान जन who had come over there. So one of his team members from London called me up and said, "You want to fix a meeting with prophet?" I did not tell even my team members. So I said, "No, I'll pray." Because that day, listen, उस दिन संडे था और मैं लाइव दुबई से 3 घंटा आपके लिए प्रेयर कर रहा था। बहुत थक गया था। सुनिए। और बोले प्रॉफिट भी फ्री है 10 बजे से 1 बजे तक। मैं बोला नहीं सर, 10 बजे से 1 बजे तक मेरी वाउ सर्विस है। दिस इज द की। यही कुंजी है। कितने भी बड़े नाम चिन्ह आप आदमी हो और कितने भी आपको कहना चाहता हूं, कितने भी आप टूटे हुए व्यक्ति हो, इफ यू कैन टैप इनटू दिस, एवरीवन से ब्लेसेड। और अगर आप इस बात को जो है छू लेते हैं, आप देखो यहाँ पर लिखा है धन्य है। धन्य है। इन द realm of the spirit, your position changes. Cursed, broken, this, that, your position becomes blessed. Hallelujah. और आत्मा की आयाम में आपकी स्थिति Blessed. बदल जाती है। अगर आप टूटे Blessed. हुए हैं, आप अगर चोट खाए हुए हैं, लेकिन जब आप आत्मा से भरते हो, यहाँ पर When लिखा you है आप hunger धन्य हो। and thirst and say, God, I want you. जब आप भूखे और प्यासे होते हो, आप धन्य होते हो। जब आप कहते हो कि You हे are परमेश्वर, blessed. मैं तुझे चाहता हूँ, The आप curse धन्य breaks हो। over your life. और श्राप आपके जीवन से टूट जाता है। You are not cursed, you are blessed. और Hallelujah. आपको श्राप नहीं मिलता, आप आशीर्वादित हो, आप धन्य हो। Never come to a place where you think you know everything. कभी भी उस जगह पर मत आइए जहां पर आने के बाद आपको लगे आपको सब मालूम है। मैं जानता हूं, तेरे एटीट्यूड से दिखता है। मुझे सब मालूम है, आपके स्वभाव You know, से दिखता I'm है। telling you, some people, you know how पवित्र आत्मा, ऐसा एक लात मारना चाहिए तेरे हड्डी से स्टाइल में। What is this? ये क्या है? What is this nonsense? और ये क्या मूर्खता है? अगर कुत्ता पीछे लगेगा ना तो हाथ उठा के भागेगा सीधा। मैं गाउटी आदमी हूं, सच बोल रहा हूं, मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। Throw your style out. और अपनी स्टाइल को मत दिखाओ। Hunger and thirst. भूखे आपको और अच्छा नहीं लगेगा प्यासे। ये बात। You will not like it. आप शायद इस बात को पसंद But नहीं if you करेंगे। want me to tell you what is the reality, this is the reality. लेकिन अगर आप चाहते कि मैं आपको सच्चाई बताऊं तो सच्चाई यही है। Same preacher, वही प्रचारक, same sound system, और वही साउंड सिस्टम होता है, same message, और वही संदेश होता same है, auditorium, और वही सभागृह होता है, same band. और वही आराधना दल होता है। Why some are not filled? क्यों कुछ लोग भरते नहीं है पवित्र आत्मा से? Because they want to meet the preacher. क्योंकि उनको प्रचारक से मिलना होता है। They say, "Don't worry, man. Hey, don't worry. I know the man." और प्रचारक You know, कहते left हैं, में, right में, you know. Dear friend, listen to me. आदरणीय दोस्तों सुने इसे, Whatever has happened to you, और जो भी आपके साथ हुआ है, whatever you're going through, और जिसमें से भी आप जा रहे हो, God has the power to pull you out. परमेश्वर के पास सामर्थ है आपको खींचने की। जिस मुसीबत से तुम जा रहे हो, खुदा इतनी ताकत रखता है कि तुमको उससे बाहर निकालने के लिए। हालेलुया, कोई तो अपने हाथों को उठाकर जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। This is the key. और यही कुंजी है। Today I give you the key.
और आज मैं आपको कुंजियां देता हूं। Please, ध्यान से सुने. I've seen men of God today. आज Don't let my words be like you think I'm jealous of anybody. No, I'm sharing with you in the last days what you have to do. और आपको शायद लगे कि मैं किसी से जल रहा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, इन अंतिम दिन में हमें क्या करना चाहिए। There are people whom I have received. और ऐसे लोग जिनको मैंने जो है ग्रहण किया, Receive किया है. रिसीव किया है उनको, They don't have not spent even 1 hour in prayer. और उन्होंने जो है 1 घंटा भी प्रार्थना में समय नहीं गुजारा। Hunger and thirst for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे बने। Stop running after this one and that one. लोगों के पीछे भागना बंद करो, इसके पीछे उसके पीछे। This is the key. यही कुंजी है। I am in a position मैं कुछ बोल नहीं सकता. मैं एक ऐसे जो है स्थान में हूं जहां मैं कुछ बोल नहीं सकता। क्या बोलूं? कैसे बोलूं? कितना बोलूं? कुछ नहीं बोल सकता. But if I will point to you in the last days, if you want to stay away from deception, अगर आप धोखे से बचना चाहते हो इन अंतिम दिन में, I wanted to warn the pastors. तो जितने I want पास्टर्स to हैं warn the leaders. उनको our मैं leaders. चेतावनी देता हूं, जितने जो अगुवे हैं उनको मैं चेतावनी देता हूं। Let that hunger and thirst always be for God. और आपकी भूख, आपकी प्यास हमेशा परमेश्वर के लिए हो, You will be filled. और आप भरे जाओगे। Not only this Sunday, और ना केवल इस संडे, but every Sunday, like David, you will say, every day you will say, my cup is overflowing, Pastor. और हर रविवार आप इसे अनुभव करेंगे और दाऊद की तरह कहेंगे, मेरा प्याला उमड़ रहा है। Somebody shout amen. Somebody come और on. कोई कहे आमेन। मैं फालतू बकवास नहीं कर रहा हूं. People, I cannot share anything more. But please, I want to keep you from deception. Listen to me. Listen to me. मैं आपको धोखे से बचाना चाहता हूं, मुझे सुने। And the last thing, what attracts the presence of God? और ये पहली बात और ये अंतिम बात, What परमेश्वर attracts की the presence of God? और परमेश्वर की उपस्थिति को क्या आकर्षित करता है? What attracts the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति को क्या आकर्षित करता है? is worship. वो है आराधना। Everybody say worship. हर कोई कहे आराधना। पास्टर, प्रार्थना सब लोग करते हैं, कुत्ते बिल्ली सब चूहे सब लोग प्रार्थना करते हैं, मसीह प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई आराधना नहीं करता है. मैं जब देखता हूं लोगों को, बुरा नहीं मानना प्लीज, मैं पास्टर हूं, ध्यान से सुने. जब मैं लोगों को देखता हूं, वो प्रार्थना 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी कर सकते हैं, पूरा रो रो के. उनको बोलो 10 मिनट आराधना करने के लिए, वो आंख खोल के इधर उधर देखते हैं. क्योंकि आराधना ऐसी चीज है जो शरीर को मार देती है. It kills the flesh. It kills the flesh. और वो शरीर को It kills मार the देती flesh. है। And what kills the flesh और- invites the presence of God. और जो शरीर को मारता है वही परमेश्वर की उपस्थिति को लाता है। Today, आज the anointing will come upon your life. अभिषेक आपके जीवन पर आएगा। First is the blood of Jesus. सबसे पहले यीशु का लहू। Second, come on, help me दूसरी right now, बात, मेरी मदद is the करें, hunger and thirst. वो है भूख और प्यास। Today, ask God. और आज परमेश्वर से Say, पूछे God, give me genuine hunger and thirst for कि you. परमेश्वर आप मुझे वो सच्ची भूख और प्यास से भरे। How many following me right now? कितने लोग सुन When रहे you हैं get मुझे? that genuine hunger and thirst for God, और जब सच में हमारे पास परमेश्वर के लिए वो भूख और प्यास होती है, alcohol will lose its grip on you. और शराब जो है उसका Yes. बंधन आप पर से टूट जाएगा। Lust will lose its grip on you. और हम देखते हैं कि कामों की इच्छाएं उसका प्रभाव आप पर से टूट Pornography जाएगा। will lose its grip on you. और जो पोर्नोग्राफी है उसका भी जो है बंधन टूट जाएगा। The reason these things are holding you, और ये सारी चीजें आपको पकड़े इसलिए है because there is no hunger and thirst क्योंकि inside. आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहे, पड़ोसी, today let us go beyond the और miracles. आज हम चमत्कार के थोड़ा आगे जाएं। Can the Lord touch my, oh, I want to go to London. Oh, I want to go to US. Beyond that, brother. क्या beyond पास्टर that, आप beyond मेरे लिए that. प्रार्थना करेंगे? Can the Lord touch my dog? Oh. I believe in miracles. और ईमानदारी से कहा जाए तो मैं चमत्कार में मैं भी विश्वास करता हूँ, But let's go beyond that. लेकिन आओ हम चमत्कार से थोड़ा आगे जाएं Let's go be into His presence. और आइए हम उसकी उपस्थिति में जाएं। Blood of Jesus, यीशु का लहू, hunger and thirst. भूख और प्यास And the third thing, और आराधना, last thing, listen, और अंतिम बात illustration. Never forget this. और उदाहरण है, इसे कभी भूले नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा ने अपने लोगों से कहा कि मेरे महल में से जो भी चीज चाहिए तुमको वो लेके जाओ.
सब प्रजा खुश हो गई, बोला राजा येड़ा है, ये ऐसे ही है, मसीह है ना येड़ा है। सब लोग आए, बोले लेकिन टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे को, जो मांगता लेके जाओ। एवरीबडी केम, everybody came. Somebody took the 65-inch television. Why are you laughing, huh? Somebody took his Mercedes, somebody took his Rolls Royce. सब गाड़ी एक एक लगा, बोले सब लोग बोले राजा पागल है। But one fellow was there from Bandra. I don't know, I just said like that. और बांद्रा से एक व्यक्ति था, मुझे नहीं मालूम कौन था, मैंने ऐसे ही कहा। He was just looking at the Raja like that. वो राजा को इसी तरह देख रहा था। Rajesh Singh, बेटा go. और राजा ने कहा जाओ जाओ Go कुछ in लो, that room, you know. जाओ उस कमरे में, There's a nice showcase. Take और it. वहां पर एक बहुत अच्छा खूबसूरत शोकेस है, लेकर जाओ। 4:30, 4:30 बज गए, 4:45. 4:45 बज Now गए। Raja was getting very angry, na? अब राजा को बहुत गुस्सा आ रहा है, He's saying, foolish fellow. और बेटा इतने go. मूर्ख लोगो, जाओ Take that gold. See something जाओ, is वो falling. सोना Go पड़ा है, लेकर जाओ। At 10 to 5, you know what he says? और जब 5 को 10 मिनट थे, उसने क्या कहा आपको मालूम है? He said, Raja, ये सब लोग तुम्हारी वस्तु लेके जा रहे हैं। और ये व्यक्ति जो खड़ा था, उसने कहा राजा ये सारे लोग आपकी चीजें लेकर जा रहे हैं। He's saying, तू अभी भी राजा है। सुनिए, तू अभी भी राजा है। आज बोला लेके जा, कल बोला लेके आ, तो तू एक मिनट, तू राजा है तो इसका मतलब तेरे को कुछ नहीं चाहिए? तो चाहिए ना। बोलता है मैं आपको ही मेरे गांव में लेके जा रहा हूं आज। Listen, I'm telling the truth. One uncle from Kerala, and I was in Dharavi, I will tell you, he shared this thing. I was only 24 years old. ये आज भी स्टोरी मेरे दिल के अंदर है, मैं भूला नहीं उसको, मैं भूला नहीं है। और 24 साल की उम्र में पास्टर जी ने ये उदाहरण एक अंकल से सुना था धारावी में, जो केरला से आए थे। सिंह तू राजा है, मैं तेरे को ही लेके जाऊंगा। इस व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा। Hallelujah. Today, आज I want you to open your heart. मैं चाहता हूं आप अपने दिल को खोलें। I know you are going through troubles. मैं जानता हूं आप सताव और तकलीफ से जा रहे हैं। But as a man of God, I've prayed today. I've prayed for these days. God will visit your home today. लेकिन परमेश्वर का जन होने के नाते आज मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके घर आएंगे, वो आपसे मुलाकात करेंगे। I have not attracted you towards me. और मैं आपको मेरी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता। I have attracted you towards Jesus. मैं चाहता हूं कि आप यीशु की ओर आकर्षित हो जाए। Lift your hands today. अपने हाथों को आज उठाएं। Say blood of Jesus. कहे यीशु का लहू, Hunger and thirst. और कहे भूख और प्यास, And worship. उसकी आराधना करें। Yes.